सतनाम श्री वाहिगुरु जी। गुरु नानक परशोत्तमं परंपरा वरनाथ युगल चार मम बंदना धर पर धर कर मात नासुरो मनसूर गुरु गोबिंद सिंह एज दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह हक राज जोर गुरु गोबिंद सिंह जुमला फैज नूर गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह शाहे शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह वह प्रगट्यो मर्द गमड़ा वरयाम अकेला वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला प्रभु आगम सुनिया जी मेरे मन चाहो गया प्रभु आगम सुनिया मेरे मन चाहो गया
रंग लगिया वाले
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਔਰ ਨਿਵਾਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਤਿ ਸੰਗ ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਨਿਮਕੇ ਘਰ ਨਾਮ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ। ਅੱਜ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਾਸੀ, ਹੇਮਕੁੰਟ ਵਾਸੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਮਦ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਉਦਮ ਬਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ। ਅੱਜ 20 ਜਨਵਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਜੇ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਦਲੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। ਅੱਜ ਪੋਹ ਸੁਦੀ 7 ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਡੇਟ ਕੀ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਪੋਹ ਸੁਦੀ 7। ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਪੋਹ ਸੁਦੀ 7। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ 7 ਮਾਘ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਕਿਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 7 ਮਾਘ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ, 20 ਜਨਵਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ 7 ਮਾਘ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਅੰਤਰ ਲਾ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਡੇਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਕੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲਿਪੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਮਤ ਦੀ ਡੇਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੰਮਤ ਦੀ ਡੇਟ ਉਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੋਹ ਸੁਦੀ 7, ਪੋਹ ਸੁਦੀ 7 ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਪੋਹ ਸੁਦੀ 7 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪੋਹ ਸੁਦੀ 7 ਕਦੋਂ? ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਉਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੋਹ ਸੁਦੀ 7 ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਿੱਛੇ ਪੋਹ ਸੁਦੀ 7 ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਪੋਹ ਸੁਦੀ 7 ਠੀਕ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਪੋਤਰਿਆਂ ਦਾ, ਦੋਤਰਿਆਂ ਦੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ, ਡੇਟ ਦੀ ਆਪਣਾ ਬਰਥ ਦੀ ਤਰੀਕ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ 5 ਜਨਵਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੱਕੇ ਮਿੱਥ ਲਾਂਗੇ 5 ਜਨਵਰੀ, ਨਹੀਂ ਮਿੱਥ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਜਨਵਰੀ। ਗਲਤ। ਦਿਹਾੜਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਸਿਆਲ ਹੀ ਮਨਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਪੱਕਾ ਮਿੱਥਣਾ ਫਿਰ ਪੋਹ ਸੁਦੀ 7 ਮਿੱਥਣਾ ਪੈਣਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 5 ਤਖਤਾਂ ਨੇ ਜੇ ਪੱਕਾ ਮਿੱਥਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੋਹ ਸੁਦੀ 7
आनंदपुर साहब अज मनाया जा रहा है, जो पंजां तख्तां ते अज मनाया जा रहा है पोह सुदी सत। इस करके कई बार विचार की गहराई ते नहीं जाते, साडे तो भुल हो जाती। अज महाराज का पोह सुदी सत है, गुरु गोबिंद सिंह महाराज का प्रकाश दिहाड़ा। साध संगत जी किन्नी विचारन जो गल है, महाराज का पोह सुदी सत च हुंदा है अवतार, ते जे आनंदपुर साहब छड्डदे ने पोह च, जे विछोड़ा हुंदा है पोह च, वड्डे लाल शहीद हुंदे ने पोह च, छोटे हुंदे ने पोह च। किन्नी विचारन जो भी गल, किड्डा महीना पवित्र जिहड़ा सारा महीना जोड़ मेले खंड पाठ लड़ियां समागम चलते रहते हैं। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज का प्रकाश दिहाड़ा नगर जुलमत की संगत प्रेम नाल श्रद्धा नाल मना रही। हुण महाराज के जीवन की आपां विचार साझी करिए। साध संगत जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपना इतिहास आप लिखिया, अपनी कलम नाल लिखिया। ये भी जिहड़े जन्म दे विच महाराज ने साडा भला कीता ते पिछला भी महाराज ने आप ते तीसरा जन्म इतिहास नाल प्रगट किया। इतिहास जो पढ़ांगे 3 जन्मां बारे महाराज का पता लगता है, तप बारे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज विचित्र नाटक बाणी है 10वीं दी, उहदे विच उच्चारण करते ने, अब मैं अपनी कथा बखानू। अब हुण अब दे अर्थ अखरी जे करिए ना, जो आप कोई गल करते होइए किसी की, लै भी हुण मैं अपनी, अब दे अर्थ ने हुण मैं अपनी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज का मतलब पहला कोई गल कर रही सी विचित्र नाटक च, होर गल चल रही सी महाराज की। वो गल किहड़ी चलती सी, जो ग्रंथ पढ़ांगे ना फिर पता लगेगा। बड़ी महंगी बाणी महाराज दसण दी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने उस तो पहला 24 अवतारां का जीवन दसिया। 24 अवतारां बारे दस के ना फिर कहते ने, अब मैं अपनी कथा बखानू। खालसा जी हुण मेरे जीवन बारे सुनो, मैं किवें आया दुनिया ते, मेरा किवें आना होया। महाराज अपने जीवन बारे, पिछले जीवन बारे, जन्म बारे अपनी कलम नाल सच्चे पातशाह इउं लिखदे हैं, अब मैं अपनी जी कथा बखानो, कथा बखानो। अब मैं अपनी जी कथा बखानो, कथा बखानो। तप साधत जिवें तपस्या की, जिवें साधना की असी
ਅਸੀਂ ਤਪ ਸਾਧਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਪ ਸਾਧਤ ਜੈ ਬਿਦ ਮੁਹਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਬਿਦ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਰੀਜਨ ਆਉਣ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਤਪ ਸਾਧਤ ਜੈ ਬਿਦ ਮੁਹਿਆ। हेमकुंट पर्वत है जहाँ, सप्त श्रृंग सुशोभित है तहाँ। हेम कहिए बर्फ प्लस कुंट, कुंट कहिए एरिया। कुंट का अर्थ है एरिया, हेम का अर्थ है बर्फ। हेमकुंट पर्वत है जहाँ, जिथे बर्फ का घर, बर्फ का एरिया पर्वत है, जिथे पर्वतों ते बर्फ पैंदी है। हेमकुंट पर्वत है जहाँ, सप्त श्रृंग सुशोभित है तां। सत चोटियां वाला जिथे पहाड़ है, सप्त श्रृंग सुशोभित है तां। ते सच्चे पातशाह कहंदे सप्त श्रृंग तै नाम कहावा, पंड राज है जोग कमावा। वो जिहड़ियां सत चोटियां ने ना, वो ये सिद्ध करदियां ने कि उत्थे पांडवां ने तप कई। इस तरह अर्थ करदे ने, पंड राज, पंडू राजा होया एक। जदों राज भाग किसी नूं मिलेगा ना, ये तपों मिलता हुंदा, तप दा सदका। ते जदों राज पा के उहदे विच गलत काम करन लग जे, राज संचालक ठीक ना होवे, फिर राजों नरक जाना पैंदा। इस तरह बड़ियां नाल होया। तप करके राज मिले, फिर पाप किया, राज के नशे विच नरक जाना पिया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहते थे पंडू राजे जां, पांडवों ने भी, ऋषियों मुनिया ने भी तप किया। ते महाराज दसदे ने अपनी कलम नाल लिख के, तै हम अदक तपस्या साधी। उत्थे असीं इन्नी ज़्यादा भगती की कि उनका अंत ही नहीं दसिया भगती का। हेमकुंट ते तपस्या कीती, हेमकुंट ते तपस्या कीती, मत हर सतगुर में सकते, सकते मत हर सतगुर में सकते। देखो सारा दृश दस दिता अपनी बाणी विच, केड़ा इलाका सी, कित्थे सी तप कीता। ये महाराज दा पिछला जन्म, इदों भी पिछला जन्म है तप वाला, वो अगे जाके दस दे।
इत्थे तां महाराज ने कीता तप, पर इस तो पहला भी तप किया। उतों तप करके फिर हेमकुंड साहब आए सी। हेमकुंड तो तप करके फिर पटना विखे महाराज ने भव लिया, प्रकाश होया महाराज। सासन जी इस तो पहला जिहड़ा महाराज ने तप किया हजूर साहब किया, सचखंड श्री हजूर। इनू अबचल नगर कहते हैं, पर इनका असल अर्थ ने अफजल। अफजल मुसलमान वीरां दा इलाका सी, फारसी विच अफजल, अबचल बाद विच पिया, अफजल नगर। इत्थे मसीत सी जिथे अज सचखंड हजूर साहब मुसलमाना वीरां दा स्थान सी। महाराज गोदावरी दे कंढे, गोदावरी दे भी अर्थ ने गोद प्लस आवरी, ऋषियां मुनिया दे गोद दे विचों आवरी प्रगट होने वाली गोदावरी। गोदावरी का नाम तो सुनिया होना पर अर्थ नहीं किसी ने सुने। गोद प्लस आवरी, ऋषियां मुनिया दे गोद विचों प्रगट होने वाली गोदावरी। महाराज इत्थे बैठे गुरु कलगीधर पातशाह, इत्थों महाराज तीर छड्डदे ने, मसीह की कंध विच वजदा, पाड़ के लंघ डिग जाती मसीह की। उन्होंने उजर किया, महाराज असी तुहानू खुदा मनते हैं, तो तुसी साझा उपदेश देते रहे हो भी मसीत भी रब दा खुदा दा घर है, गुरुद्वारा भी वाहिगुरू दा घर है, मंदिर भी उनका घर है। अज साडा तुसी धार्मिक स्थान ढा दिता है, सानू खेद होया, दुख होया सानू। महाराज कहणगे जे तुहाडा ढाउंदे तां खेद सी, पर यह तुहाडा नहीं। भावें उस वक्त मुगल राज सी, महाराज ने दवाया सी बहादुर शाह का, शिकायत भी बहादुर शाह भी आया सी। महाराज कहते चल देख बहादुर शाह, तो उन्होंने स्थान नहीं साडा स्थान। जो महाराज गए, महाराज कहते हजूर साहब जिथे मसीत बनी इनू कुटो, कुटिया, उत्थे धूना निकलिया, उत्थे चिप्पी निकली, माला जिहड़ा तप दा समान सी ये उत्थों निकलिया जिथे हजूर साहब है, मसीत दे नीचों निकलिया। महाराज कहन लगे वेखो भाई साडा तप स्थान है, असीं इत्थे तप कीता, इत्थे पहला तप कीता बहुत ज्यादा सासन जी महाराज ने। फिर कीता हेमकुंड, हेमकुंड की बाबत महाराज कहते तै हम अधिक तपस्या साधी, बड़ी ज्यादा तपस्या की महाराज अपनी कलम नाल आप लिखते हैं। हेमकुंड से तपस्या कीती
तै हम अदक तपस्या सन। अदक मतलब बहुत ज्यादा। वो एक इतिहासकार ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸਤਜੁਗ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਤਜੁਗ 'ਚ। ਸਤਜੁਗ ਸਾਰਾ ਲੰਘਿਆ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਸਾਰਾ ਲੰਘਿਆ, ਦੁਆਪਰ ਸਾਰਾ ਲੰਘਿਆ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਲਿਖੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਯੁਗ ਜਦੋਂ ਐਨ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਸਿਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਵੇਖੋ ਸਤਯੁਗ ਦੀ ਉਮਰ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਲਿਖੀ, ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ, ਦੁਆਪਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ, ਕਲਯੁਗ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ 4.5 ਯੁੱਗ ਦੇ ਲਗਭਗ ਮਹਾਰਾਜ ਐ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਠੰਡ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਰਫ਼ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬਿਨਾਂ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ 4 ਯੁੱਗ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤਪ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਐਸਾ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਇਆ ਹੇਮਕੁੰਟ ਵਾਲੇ ਪਰਬਤ ਤੇ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਈ ਯੁੱਗ ਹੀ ਫਿਰ ਲੀਨ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮਹਾਕਾਲ ਕਾਲਕਾ ਅਰਾਧੀ। ਸੱਸ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੇਵੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਵੀ ਹੈ ਕਾਲਕਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇਵੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੇਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਦੇਵੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਦੇਵੀਆਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਮਹਾਕਾਲ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿਹਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਗੱਲਾਂ। ਮਹਾਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਕਾਲ ਕਹੀਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਕਾਲ ਕਹੀਏ ਮੌਤ ਨੂੰ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਕਾਲ ਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਦਾ ਵੀ ਕਾਲ ਹੈ, ਕਾਲਕਾ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਦਾ ਵੀ ਕਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਜੂਨੀ ਸਹਿਬੰ। ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜੂਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ, ਨਮੋ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜੇ, ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਮੋ ਮਤਲਬ ਨਮਸਕਾਰ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਚੰਦਰਮੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਨਾ ਸਮਰਥ ਹੋਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹੇਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੂਰਜ ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ। ਨਮੋ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜੇ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ। ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਹਮਾਰੀ, ਸਕਲ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਨੇ ਆਪ ਸਵਾਰੀ। ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈ ਹਮ ਅਦਕ ਤਪੱਸਿਆ ਸਾਧੀ, ਮਹਾਕਾਲ ਕਾਲਕਾ ਰਾਧੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 2 ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਗਤ ਤੇ ਰੱਬ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ 2 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
जो सिख की भगती पूरी होती है गुरु च ते सिख च, पर जो सिख बचन कह दे वो भी सत हो जाता है। शरीर दो होंगे ने, जिवें भाई लखू होए, भाई पुराना होए, बाबा बिधि चंद होए, बड़े गुरसिख होए गुरु इतिहास। शरीर दो होए सी उन्हां दे, पर जो बचन कहते सी वो सत हो जाता सी, चलता सी। महाराज भी नहीं मोड़ते सी। महाराज कहते ए बिद करत तपस्या भयो, दवै ते एक रूप हवै गयो। कहते ऐसी अवस्था साडी बन गई, भगती करते करते रब च ते साडे च फर्क ही नहीं रहा। दवै दो तो एक रूप हवै गयो, एक रूप बन गए सी, अकाल पुरख का रूप। अकाल पुरख ही विच समा गए। महाराज आप कर कहते हैं, हुण लिखते ने पटना शहर बारे अगे, वो तो दसता पिछला जन्म गुरु कलगीधर पातशाह महाराज। इधर कहते ने तात मात मुर अलख अराधा, बहुविध जोग साधना साधा, तिन जो करी अलख की सेवा, ताते प्रसन्न भये गुरुदेवा। अपने माता पिता बारे कहते ने, माता गुजर कौर जी गुरु तेग बहादुर महाराज बारे लिखते हैं महाराज। देखो जे किसी प्रोफैसर इतिहासकार ने लिखिया होंदा आप कहते नहीं जी असीं नहीं मानते, पर हुण 10वें पातशाह अपनी कलम नाल आप लिख रहे कहते साडी माता ने साडे पिता ने बड़ा तप किया। साध संगत जी पिछला तो पता नहीं कितना कु तप है। माता गुजर कौर का तप बाबे बकाले 26 साल 9 महीने 13 दिन महाराज की माता का तप है। जो महाराज भोरे विच सी ना, किते शाम सवेरे महाराज निकलते टहलते हैं महाराज, नहीं तो महाराज अंदर ही बैठे रहते। ते साथ संयोग माता गुजर कौर जी डंडा फड़ के दरवाजे अगे पहरे नाले वाहिगुरू वाहिगुरू। 26 साल का तप, एक बरी भी नहीं मूँह कहा। विआह हुए 29 साल के लगभग समा हो गया सी, पर संतान नहीं कर रही सी। 29 साल गुरु 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 गोबिंद सिंह महाराज 30 साल बाद माता गुजर कौर के घर आए ने। 30 साल हो गए सी विआह नूं माता गुजर कौर, इन्ना लंबा समा लंघ गया सी। ते कहंदे माता जी उत्थे वाहिगुरू वाहिगुरू करते रहंदे ने। ये तां सदके जाइए बाबा मक्खण शाह लुबाणे दे, जिन्हें अपना मूँह ते कालख ला के सारी दुनिया की कालख धो दी ते महाराज नूं प्रगट किया। भोड़िए गुरु दी संगते गुरु ला, वो सच्चा सतगुर अंदर बैठा है। पखंडियां नूं तुसीं मन्नी जांदे हो, इन्हां नूं माया चढ़ाई जांदे हो, ये नहीं गे आ अंदर बैठा कोठे ते चढ़ गया सी। महाराज कहे जिहड़ा सानूं प्रगट करेगा मूँह वो पहला ही कर लिया सी। वेख लो नाले अज दा 5 करोड़ अरब भी थोड़ा है। जो माया लैके आए सी महाराज मत्था टेकण वास्ते 5 अरब उनका मुकाबला नहीं करे। कलैक्शन करके वेख लो। बेशक साडे बजुर्ग दसदे सी, कहंदे अज तो 50 साल पहला 1 रुपये का बड़ा कुछ आ जाता सी, हुण 1000 का कुछ नहीं बनता। 1 रुपया ते 1000 मुकाबला नहीं अज कर सकता उदों का। तो फिर 500 मोर किन्ने च जाएगी अज। ते साध संगत इन्नी गुरु नानक की कृपा सी, 500 जहाज चलता सी। ये राज भाग दिते सी एक कौम नूं महाराज गुरु नानक ने दिते सी, ते सीने सीने चलते आ रहे। इन्नी कृपा सी परमेश्वर। ते एक घर ने जिथे लोड़ पई है सेवा बड़ी की गुरु तेग बहादुर महाराज दी बाबा मक्खण शाह लुबाणे। ते जदों महाराज दे सरीके ने वादा किया, गोली चलाई सी सीएम संध ने धीरमल के कहण ते। महाराज अपने ही तो प्रवाह सी, इतों छू के लंघ गई सी। बाबा मक्खण शाह लुबाणा उदों मत्था टेक के प्रगट करके तुर गया। जो पता लगा गुरु नाल प्यार है तो गुरु के उत्ते इहो जी गल होई होवे फिर रह सकदा सी। फिर अपनी फौज लैके कहंदे कई 100 से ते नाल सिपाही रहिंदे सी। बाबा मक्खण शाह लुबाणा इन्ना तगड़ा उन्हां दा सिस्टम सी, बिजनेस इन्ना वड्डा सी उन्हां दा। फिर आए, फिर महाराज नूं नहीं पुछया, जाके गलमे तो फड़ लिया उन्होंने। मेरे गुरु ते वादा करने वाले हो, तुसीं विचारिया ना ये गुरु का दिता सारा जग खा रहा किहड़े भरम च जिओ।
सारा कुछ इकट्ठा कर, ये सुनिया नहीं होना तुसी बाबा मक्खण शाह दा, सारा समान इकट्ठा करके विचे गुरु ग्रंथ साहिब का पहला स्वरूप भी लै गए सी ते बाबा मक्खण शाह लबाणा लैके आए वापस। महाराज कह लगे अपने ते उन्हां च फर्क नहीं रहा। बाबा मक्खण शाह लबाणे नूं कहंदे भाई बई देख अकाल पुरख का सारा कुछ दिता, आपां नूं इन्हां वस्तुआं नाल कोई स्नेह नहीं है, दे दो उन्होंने वस्तुआं कोई नहीं। महाराज सिख बर्दाश्त नहीं कर सकता जो गुरु ते इन्ना कुछ हुंदा होवे, सिख दे गुरु। इस करके साध संगत जी इत्थे बाबे बकाले गुरु तेग बहादुर महाराज रहिंदे ने। कई साल लंघे महाराज नूं इस तरह बंदगी करदे ते महाराज लिखते हैं अपनी कलम नाल गुरु गोबिंद सिंह तात मात मुर अलग राधा, अकाल पुरख की आराधना की, बहुत विद जोग साधना साधना बड़ी साधना की माता गुजर कौर गुरु तेग बहादुर महाराज ने। ते कहते तिन जो करी लख की सेवा ताते प्रसन्न भई गुरु, अकाल पुरख खुश होया मेरी माता ते मेरे पिता ते। तिन जो करी लख की सेवा ताते प्रसन्न भई गुरुदेवा, कहते जो प्रसन्न होया अकाल पुरख कहंदा हुण मैं आप आवांगा तुहाडे घर पुत्र दे रूप विच दुनिया दा आके भला करांगा, जुल्म नूं खत्म करांगा। दो धर्मां तो एक धर्म होर मत चलेगा जिहड़ा खालस रूप जिहदे विच कोई बेईमानी धोखा नहीं होएगा, जिहदे वास्ते सारे बराबर होंगे। ऐड आ रही सी भाई रवि सिंह खालसा ऐड वाले कहंदा असीं इंसानियत नाते गुरु दे दसे मार्ग ते आ रहे ना कि भी सिखां दा इत्थे मोर्चा है, ये मुख रख के नहीं आ रहे भी सिखां दा मोर्चा है, नहीं ये किसानी मोर्चा भावें इंसानियत के नाते है। असी जिथे भी किसी भावें मुसलमान वीर भावें किसी धर्म के जदों उन्हां ते आ बनी दुख का समा बनया असी खड़े हाँ, असी इंसानियत नाते आके अज भी इत्थे खड़े हैं कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सिखाया भला करना। इस करके खालसे का मतलब यही है, महाराज कहते ये भी चलेगा। अकाल पुरख का हुक्म होया इधर जो अकाल पुरख प्रसन्न हो गया माता गुजर कौर ते गुरु तेग बहादुर महाराज कहते फिर लिखते ने महाराज तिन प्रभ जब आयस मोहे दिया तब हम जन्म कलू में लिया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते फिर अकाल पुरख ने हुक्म करता भी हुण तुसीं अवतार कर प्रकाश लो दुनिया ते, सानू हुक्म कर दिता फिर साडा आउणा होया। ते महाराज कहते ने चित ना प्यो हमरो आमन कह चुपी रही सुरत प्रभ चरणन में। कहते साडी इन्नी प्रीत लगी हुई सी ना सिमरन विच, साडा जी नहीं करदा सी आउण नूं भी होर भगती करी जाई, सुरत जुड़ी हुई सी। पर हुण अकाल पुरख दा हुक्म सी ना मोड़ सी, जाना पैना सी जिवें उन्हां दी सेवा। ज्यों त्यों प्रभ हमको समझायो, सानू समझाया इम कह के लोक बिठायो, सानू ये कह के इत्थे दुनिया ते भेजिया। अकाल पुरख दा हुक्म होया ते कहन लगे फिर असी ये दुनिया ते आए। इधर कहते सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते अकाल पुरख कहंदा मैं अपना सुत तोहे निवाजा पंथ परचुर करबे को साजर। वड्डी चौपाई साहिब विच आउंदे ने कहंदे काल पुरख ने सानू कहा मैं तेनों अपना पुत्र बना के भेजदा, मेरे च ते तेरे च कोई फर्क नहीं है। पिता दे सारे अधिकार पुत्र नूं हुंदे ने, मेरियां सारियां शक्तियां काल पुरख कहंदा सारे अधिकार तेरे हथ। मैं अपना सुत तोहे निवाजा पंथ परचुर करबे को साजा। महाराज ऐ लिखते ने जदों काल पुरख ने हुक्म करके तेनों पुत्र बना के मैं भेजना पंथ सजाउणा
पंथ चलाना। सो अगे काल पुरख के अगे हथ जोड़ ले। गुरु गोबिंद सिंह अगे जवाब लिखते हैं, जो काल पुरख ने मैनू ऐ कहा ना, मैं काल पुरख अगे हथ जोड़ ठांड प्यो मैं जोर कर बचन कहाँ सिर न्याय, पंथ चलै तब जगत में जब तुम करो सहाय। हे अकाल पुरख, ये पंथ तेरा चलाया चलेगा, पर तेरे चरना च बेनती है, खालसा पंथ तां चलेगा जे तेरा सिर ते हथ होएगा। संतां ने दस्या सी मौजूदा सरकार नूं भी खालसा पंथ कहंदे नहीं हिंदुआं चों निकलिया, कहंदे नहीं तेरी भुल है, मौके दी ये सरकारे भुल है तेरी। खालसा प्रगट होया अकाल पुरख की मौज नाल, खालसा प्रगटे हो परमात्म की मौज। अकाल पुरख का पुरना होया मैं अपना पंथ सजाउणा दुनिया ते, अकाल दा पंथ, अकाल काल पुरख दा खालसा पंथ, ये काल पुरख ने चलाया, इनू कोई दबा नहीं सकता, इनू कोई खत्म नहीं कर सकता। जिन्ना इहदे ते वाधा होएगा उन्ना ही ज़्यादा फैलेगा। सानू तो 2% कह के ढा देंगे ने। साध संगत 2% सिख होण, दुनिया ते छाए होण, प्रभु घर इन्ने शहादतां 93% इंदियां, 93% दुनिया में हुण तक सब तो। पर एक गल है विचारन योग, आटे विच लूण कितना पाया जाता है? थोड़ा। जे 2% ने ना इन्हां दी जय-जयकारी है, फिर लूण का प्रमाण है थोड़ा ही दूर। जे अपनी आई ते कीड़ी आ जाए, कीड़ी हाथी नूं वक्त पा देंदी साथ संजी वक्त। जे खालसा 2% अपनी आई ते आए, मौके नूं समय नूं वक्त पा के रख देंदा। पर सहनशीलता भी दिती महाराज, नहीं निर्भाई रखनी है, भलाई करना है, भलाई करना है। पर जदों आखे कुछ नहीं, फिर कीड़ी भी मात पा देंदी हाथी नूं। ये काल पुरख का सच है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते, हे अकाल पुरख ठांड प्यो मैं जोर कर बचन का सिर न्याय, पंथ चलै तब जगत में, तां ये चलना है जग विच पंथ। जे तू सहायता करेगा हर वेले, इहदे ते हथ रखेगा, ये खालसा तेरा है।
बहुत इस तरह महाराज कहते साडे वार्तालाप हुई अकाल पुरख नाल ते अगे कहते ने पटना साहब बारे अगे लिखते हैं सच्चे पातशाह कहते मुरपत पूर्व कीस बयाना भांत भांत के तीर्थ नाना जब ही जात त्रिवेणी भये पुन दान दिन करत बिते तई प्रकाश हमारा भयो पटना शहर विखे भर लियो। अगे मारा देखो कितना सोहना अपना जीवन परोया है अपनी कलम नाल महाराज गुरु कलगीधर पातशाह महाराज कहंदे फिर साडा आगमन होया वो इतिहास का पक्ष इस तरह है जिहड़ी गुरु तेग बहादुर महाराज की माता सी ना माता नानकी गुरु हरगोबिंद महाराज के महल 10वें पातशाह की दादी 10वें पातशाह दादी ने बचन याद कराए लाल जिहड़े बचन होए सी बड़ा सूरबीर बड़ा योधा घर विच आउणा वो कदों आउणा है 29 साल हो गए ने विआह होए ते गुरु तेग बहादुर महाराज कहंदे वो टाइम हुण आ गया हुण दान पुन करो मुरपत पूर्व कीस भयाना उदों फिर उतो तैयारी की भांत भांत के तीर्थ नाना तीर्थां ते गए माता जी माता गुजर कौर जी तीर्थां ते गए हुण सत्संग जी तीर्थां गुरु ते जां गुरु दे परिवार नूं तीर्थां ते जाण दी लोड़ नहीं वो तो आप तीर्थ ने गुरु समुंद नदी सब सिੱਖੀ तीर्थ नाम न जाओ तीर्थ नाम है गुरु तो आप तीर्थ है गुरु जदे आप इन्नी समर्था की भला कर सकता है हुण एक कारण की महाराज गए महाराज का परिवार गया माता गुजर कौर माता नानकी मामा कृपाल चंद हुण सत्संग जी बाणी नाल सिद्ध हुंदी है विचार कहंदे जितने तीर्थ देवी थापे तितने लोचे धूर साधु कीता कहंदे जिन्ने तीर्थ ने ना आपां तां तीर्थ ते जाने इशनान करन तीर्थ जिहड़े ने रब दे प्यारे नाम जपण वाले दी धूड़ी नूं लोचदे ने भी ਉਹ ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਏ ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਭਰੇ ਪਰੇ ਹਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹਮਰੀ ਧੂੜ ਸਾਧੂ ਕੀ ਧੂੜ ਗਵਾਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਦਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸੋਈ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਇੱਕ ਤੌੜੀਆ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਟਾਵਲ ਰਸੋਈ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੀਰਥ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦੇ ਮੈਲ ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਪਾਪ ਧੋ ਦਿੰਦਾ एक दिन सत्संग जी तौड़िया जिहड़ा ना मैला हो जाता तो वह भी मंगता कि मैनू साफ किया जाए मैनू धोता जाए फिर उन्होंने आप साबण नाल धोने हुण तीर्थ पाप लाई गए लोगों के मैले हो गए तो उन्होंने तो धोने ही सी ना फिर उन्होंने धोंदे ने महाराज बाणी च कहते किल विख मैल भरे परे हमरे विच हमरी धूर साधु की हमरी मैल साधु की धूर गवाई साधु आके इशनान करते हैं तो फिर वो धोंदे ने तीर्थां नूं
ऐ थोड़ा महाराज लिखता जितने तीर्थ देवी तापे तितने धूर लोचे साधु कीता। तीर्थ भी लोच दे संता भी धूरी जब ही जात त्रिवेणी हिंदू धर्म की त्रिवेणी इलाहाबाद प्राग तीर्थ अज माघ का महीना एक दिन पहला चढ़िया सी ना हिंदू शास्त्रों द्वारा बड़ा महान पवित्र मन्या प्राग तीर्थ से जाके इशनान। ये इलाहाबाद है जी जिथे गंगा जमुना गोदावरी इकट्ठे होंगे ने। ये त्रिवेणी है, इत्थे माता जी आए। जब ही जात त्रिवेणी पए पुन दान दिन करत बिते, उत्थे पुन दान किया तीर्थां ते जाके माता जी ने। ते इत्थे एक विद्वान लिखदा है उत्थे अकाल पुरख की जोत का प्रकाश पै गया सी। बस कुक विच कहीं प्रकाश हमारा वे उत्थे प्रकाश होया। ते अगे लिखदे ने पटना शहर विखे भग लियो, जिहड़ा महाराज दा आगमन होया आमद जाके पटना में, उत्थे अकाल पुरख की जोत का प्रकाश तहीं प्रकाश। जब ही जात त्रिवेणी भये पुन दान दिन करत बिते तहीं प्रकाश। उत्थे मन कहते तहीं प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर विखे भग लियो। हुण पटना साहब किथे लिया? इत्थे गुरु नानक देव महाराज पहले जामे च बचन कर गए सी। इत्थे एक सी भगत जगत सेठ, जगत सेठ दे कोल महाराज गए। इनू भगत तां कहंदे जी हलवाई सी ते अपना पूरियां परियां बना के लोगों को लोड़वंदां नूं छकाउंदा हुंदा सी भी भगत बंदा है, भगत जगत सेठ। ते जदों गुरु नानक देव महाराज गए, महाराज दर्शन किए, निहाल हो गया, बड़ा निहाल होया। कहने लगे महाराज मेरा हुण भला कर दो। महाराज कहते हुण नहीं भला करना तेरा जी, तेरा भला करांगे 9वें जामे विच गुरु तेग बहादुर के रूप में आके। कहते महाराज समा बड़ा लम्मा है, कई 100 नाल उम्र हुई होंदी। कहते समा बड़ा लम्मा है महाराज जी, मेरा नेम रोज का मैं गंगा च इशनान करदा, वो फर्क ना पै जाए, टुट ना जाए। महाराज कह लगे तेरी ऐसी अवस्था बन गई, हुण गंगा तेरे घर आके इशनान कराया करेगी, तेनू नेम की लोड़ नहीं। इनू ये सी मैं बजुर्ग हो गया। गंगा हैगी ना लंघदी उत्थे गंगा घाट गुरुद्वारा पटना साहब, ते जिहड़ा जिथे भगत जगत सेठ नूं मिले ने गुरुद्वारा इत्थे भी है। इतिहास इस तरह नहीं, वो गुरुद्वारे का नाम है गऊ घाट गुरुद्वारा। तुसीं आखोगे उहदा इतिहास की है? ये भगत जगत सेठ का घर सी गुरु नानक देव महाराज।
महाराज मेरा नेम है, तुसीं कहंदे 9वें जामे च भला करांगे, तो इन्ने मैं नेम मेरा जी मैं गंगा जी इशनान करदा तो मैं किवें निभावांगा नेम? बजुर्ग अवस्था हो जानी, 100 साल तो बाद किन्ना को मैं भार चुकना अपना नहीं संभल जाता, कित्थे तुर जाना? ते तां 200-300 साल के लगभग समा लग जाना। महाराज कहन लगे तेरा नेम च कोई फर्क नहीं पैंदा, तेरी इत्थे गंगा आण के इशनान कराए। प्रभ कै सिमरन तीर्थ इशनानी, सिमरन करदा जेड़े सिमरन करते ने, महाराज ने बाणी ने कहा उन्होंने तीर्थ गंगा आके घर इशनान कराउंदी। कहंदे महाराज ये किवें? महाराज कहंदे सवेरे विखा देने, सवेरे गंगा च ना इशनान करन दे। कहंदा सत बचन महाराज नहीं जाता। जदों होया अमृत वेला 2:30 बजे गंगा गऊ का रूप धार के आ, मूँह दे विचों ने जल कटिया, जिहड़े चबच्चे च जिहड़ा बनिया सी पोदी जी, वो भर दित्ती पानी नाल। पुछया कौन है? कहंदे मैं गंगा अभिमानी तीर्थ जिहड़े वाहिगुरू दा सिमरन करदे ने उन्हां दा मैं घर ही इशनान करां। प्रभ कै सिमरन तीर्थ इशनान, ये गुरु तेग बहादुर मान ने भला किया। हुण आपां आखांगे भी महाराज दा जिथे जन्म होया इहदा की इतिहास है? गुरु नानक नाल इत्थे गुरु नानक देव महाराज ठहरे सी इहदे घर, इत्थे महाराज ने एक लाल दिता भाई मरदाने नूं, भाई मरदानिया जा लै जा इहदी कीमत लैके आ। कदे कपड़े वाले कदे सब्जी वाले, किसी ने कहती हुण लालां दी सार कौन जांदा है? जवारी। फिर गए सी ये साल सराय जोहरी मन्निया होया सी, भाई मरदाना उहदे घर गया, कह लगे मेरे वड्डियां ने बजुर्गां ने विद्या सिखाई है, ये लाल की कोई कीमत अदा नहीं कर सकता, इहदे मत्था जदों भी ये मिले मत्था टेक देना 101 मोल, 101 इहदी मत्था टकाई इन्नी है, इहदी कीमत नहीं जिहड़ा गुरु नानक ने लाल तेनों दिता है। 3 वारी भेजिया सी, इतिहास लम्मा कि आपां समाप्ति वाले पासे चलीए। 3 वारी भेजिया सी भाई मरदाना, 3 वारी मुड़ के आया सी। फिर वो साल सराय जोहरी कहता भी किहड़ा है जिहड़ा ऐसे लाल का मालिक है? ये फिर अपने गोले अधरके दास नूं लैके आए सी नाल। इन्हें मरण मत्था टेकिया। मार कहते पत्थर परखण जानना कि मन नूं भी परखिया कदी? कहते ये तो वड्डियां ने बजुर्गां ने सिखाया, हीरे की परख करनी, लाल की परख करनी, मन की परख तो गुरु कराउंदा हुंदा है, हुण तुसीं करा लो। कहंदा महाराज घर चलो। महाराज घर गए, इहदे घर बड़े दिन रहे। महाराज इतिहास लिखता है बड़े दिन रहे सालसराय पटने दे विच महाराज गुरु नानक देव महाराज। जदों महाराज चलण लगे ना इन्ना प्यार पै गया, कहंदा महाराज हजे ना जा। महाराज फिर ठहर गए। दूजी बार फिर महाराज तैयार होए, बाहर कहंदे हुण असीं जाना बई, अजे तो पहली उदासी है। कहंदा नहीं महाराज, फिर रह गए। तीसरी बार फिर इन्हें महाराज नूं रोकिया। महाराज कहण लगे भी हुण ऐ ना कर, असीं बड़ी दुनिया का भला करना, सानू जान दे। हाँ जिवें तू कहना उवें तेरा वचन मान लेने। कहंदा महाराज फिर आ जाओ, चक्कर ला के आ जाओ संसार। महाराज कहते चक्कर ला के भी नहीं सी आ सकते। हाँ तेरे नाल वचन करदे 10वें जामे च आ जाएंगे, तेरे घर जन्म लवांगे। होर दस ये थां ते जिहड़ा गुरुद्वारा ना पटना साहिब तख्त साहब, ये साल सराय जोहरी का घर है। ये जिहड़ा गुरुद्वारा तख्त है, इत्थे फिर महाराज दे बचन होए सी गुरु नानक देव महाराज दे, 10वां जामा तेरे घर धारांगे आके। फिर महाराज ने कहा सी, गुरु तेग बहादुर मान ने परिवार में उत्थों भेजता बाबे बकाले तीर्थां ते हुंदे होए। कहंदे माता गुजर कौर नूं 30 साल के लगभग 31 साल के लगभग समा हो गया सी विआह होए नूं। जदों इत्थे पहुंचे फिर अगे 10वें पातशाह कहंदे ने तई प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर विकै प्रभु। तई प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर विकै प्रभु। तई प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर विकै प्रभु।
पटने के इतिहास पढ़ रहे सी, 5 नाम होंगे ने बड़ी गहराई थे। पटल पाटड़ी पहला इनका नाम है ते ये एडी महान धरती इत्थे जरासंध होया। जरासंध वो होया साध संगी राजा जिन्हें कृष्ण भगवान नूं 18 वारी हराया जंग विच। 18 वारी जिहड़े कृष्ण भगवान का मामा सी ना, जिहड़ी मामी सी कंस दे घरों, ये जरासंध की बेटी सी। ये बड़ी लंबी कथा है डूंगाई दे। ये किसी ऋषि कोल गए सी, कहंदे बच्चा नहीं हुंदा चंद्रक। वो ऋषि ने फिर क्या फल लै जा राजन, घर होएगा। तो उन्हें 2 राणियां सी, अद्धा देता, अद्धा बच्चे का जन्म होया, अद्धे दे अद्धा जान के मसाणा च सट आया। उत्थे जिहड़ी मसाणा च रहिंदी सी, जदों उन्हें दोवां नूं चक्किया वो जुड़ गए। जरासंध अर्थ है नहीं दे, जरासंध ना किथों पिया, दोवां नूं जदों संधि हो गई, संध का मतलब संधि, जरासंध दोवें जुड़ गए। वो जरासंध ऐसा बली होया, साध संगी राजा होया। उनकी बेटी सी जिहड़ी कंस दे घरों सी, जदों कंस नूं मार दिता अपने मामे नूं, ते बेटी ने रुदन किया, जाके पिता नूं जरासंध नूं कहा, एडा महान सूरबीर होने का मतलब कि अपनी बेटियां का सुहाग ना बचा सकिया। कृष्ण भगवान ने मारिया आके अपने मामे नूं। फिर जरासंध चढ़ के आउंदा सी ते कृष्ण भगवान नूं अगे ला लैंदा सी। 18 वारी कृष्ण जंग करता रहा, हारदा रहा। वेलो मौके का अवतार, सुदर्शन चक्कर भी सी। फिर हार के कृष्ण भगवान साध संगी मथुरा नूं छड्ड के द्वारका नगरी वसा ली सी। द्वारका का राजा बने कृष्ण को, उन्होंने छड्ड ही दिता भी ये जित्या तो जाना नहीं, छड्ड ही दिता सी जरासंध। जरासंध ये धी सी, कंस दे घर वाली सी, कृष्ण भगवान की मामी सी ते धी सी इहदी जरासंध। ये उहदा शहर भी है पटना। इतिहास के पक्ष बड़े लिखे हुए हैं, पर खैर आप समाप्ति करिए। इतिहास की विचार डूंगाई च चली जाती, जिन्ना इनू खोज करी जाओ होर हीरे जवाहरात विचों प्राप्त हुई। महाराज कहते इत्थे साडा प्रकाश हो गया। हुण जदों किसी घर पुत्र आउंदा है, बधाइयां मिलदियां ने, माता गुजर कौर नूं बधाइयां, सारे पटने विच माहौल ही होर बदल गए, बधाइयां मिलदियां। क्यों? पटने दे विच चन्न चढ़ गए। माता गुजरी नूं मिले
अपने नेड़े सासन जी किड्डा महान पीर रहिंदा सी, पीर भीखम शाह, जिन्हां दा शरा है, जिन्हां दी मर्यादा है धर्म दी, सलामत दी, शिव दे वाले पासे नमाज पढ़नी। तो जदों अज वाला दिन सी, अमृत वेले 2:30 बजे बांग देंदे ने मुसलमान वीर, पहली नमाज पढ़ते हैं। 5 नमाजां ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच उन्हां दे नाम भी लिखे हुए। फाजल जद नमाज पढ़ते ने अमृत वेले, कहते उन्होंने जी डायरैक्शन चेंज करती, चढ़ते वाले पासे मूँह कर पीर जी मरीद कहते पीर दे कह लगे पीर जी की ना उम्र ज़्यादा हो गई, बजुर्ग हो गए ने, बुढ़ेपा आ गया तां भले पीर जी साईं जी इधर है खुदा का घर पच्छम अल्लाह मुकामा। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज भी कहते मुसलमान वीर पच्छम विच मनते हैं खुदा नूं, दखण देश हरीका वासा पच्छम अल्लाह मुकामा। अपने अपने धर्मां बारे दस, पर वो तो सारे पासे भी दसिया अगे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज। खैर पीर जी कहणगे नहीं, जिंदी नमाज पढ़दे ना वो खुदावंत करीम मनुखी जामा धार के दुनिया ते आ गया। जिंदी नमाज आपां पढ़दे हाँ वो दुनिया ते आ गया। कह लगे जदों पहला सिख गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा पहला दूर अंदेशी पीर, पहला अंतरजामी, इन्नी ज्ञात इन्नी सुरत उच्ची गई, बड़े दुनिया ते होने, पर एक पीर भीखम शाह कड़ाम आए सी सेवकां कोल। इत्थों ही फिर नंगे पैरी चले, पता नहीं किन्ने महीने लगे होने, तुरदे ही गए। किन्ना वेलो सैकड़ियां दे नाल तय करके किलोमीटर उत्थे जाके महाराज दर्शन किए। बड़ा लंबा इतिहास है। राह च मरीदा ने शंके किए, गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बचपन च ही दूर कर दिते, हजे गोद विच ही सी महाराज। ते वो जिहड़े शंके किए, पीर जी नूं तां पता सी भी वो तां आप खुदा दे तो की छुपे। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕੁੱਜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋਗੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਮਰੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਤੇ ਪੀਰ ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਕੁੱਜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਰੱਖੋਗੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਜਾਣ ਸੀ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰੱਖੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਚਲਾਏ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵਾਂਗੇ। पर पीर भी किसान पता लग गया सी, गुरु गोबिंद सिंह ने इशारा करता सी खालसा पंथ सजाना है आके सहायक होवांगे। खैर तुसी बड़े प्यार का सबूत दिता है, बड़ा लम्मा समा बैठे हो, घंटे तो ऊपर का समा तुसी बड़े प्रेम नाल बैठे रहे हो। भावें देखो कई बजुर्ग बैठे ने, बैठन च थोड़ी जी दिक्कत आती है, ये अवस्था ही एवें दी हुंदी है सत्संग दी, एक बचपन एक बुढ़ेपा, ये बचपन वाली अवस्था बन जाती। बचपन में बच्चा भी नहीं इस तरह बैठ सकता ज़्यादा लंबा समा, इस तरह बजुर्ग फिर भी प्यार में, गुरुआं दे प्यार में, इतिहास के नाल इन्ने जुड़े नौजवान वीर साडे सारे जिन्ने बजुर्ग सारे भाई साडियां भैणां, गुरु का इतिहास तुसीं सुनिया। सत्संग जी सुनाउण वाले नूं भी आनंद आउंदा जदों अगे बैठा होवे सुनना, ते जी करदा फिर सुनाई जाइए इतिहास दीयां विचारां डूंघियां तुहाडे अगे रखी जाइए। बड़ा तुसीं शरधा का सबूत दिता, हाथ जोड़ के सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ गुरु गोबिंद सिंह महाराज के प्रकाश दिहाड़े दियां। गुरु गोबिंद सिंह जिथे नगर नूं चढ़दी कला च रखण, उत्थे तुहाडे घरां नूं चढ़दी कला, उत्थे तुहाडे बच्चिआं नूं भावें विदेशां विच ने सारिआं नूं चढ़दी कला विच रखण। इन्नी कोई हाज़री प्रवान करिओ। सत्संग जी जीव का सुभाਅ है कि ये भुल्लणहार है, ये जिद तो बोलदिआं एक नहीं पता नहीं किन्नियां गलतियां हो गई होणगीआं, बख्श देना महाराज, बख्श देण, अगे तू समर्थ बख्शिश करन। इस तरह तुहाडे अगे गुरुआं दा इतिहास सुणाउंदे रहिए।
जो गुरु की जी सिक्ख्या ਆਪਾਂ प्राप्त करते रहिए ਤੇ अपने जन्म ਨੂੰ सफला कर लीए। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ने गुरु वाला बनना है, गुरु के मार्ग ਤੇ ਚੱਲਣਾ है ਤੇ गुरु की खुशी की कृपा के पात्र बनना है। नानक साहिब का पाठ गुरु चरणां ते बड़ा सत्कार किया है। माया भी तुसी बड़ी अपन सारिਆਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ नाम ही ਆਪਾਂ जाणदे ही हाँ, क्योंकि लंगर 'ਚ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਂ याद हो जाते, ਇਹਨਾਂ ਜਾਣੋ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਲੱਗੇ, ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿਣਾ, ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਪ੍ਰਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਹੀ ਬੋਲ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲ ਕੇ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਕੱਠੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾਈ ਕਰੇ ਸਭ ਮੇਰ ਕਰਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚ ਮਾਇਆ ਸੋ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। आनंद पिया मेरी माए सतगुरु में पाया। Thank you.